Chinmay, have you go through the videos? I have sent you in the link. Yes, sir. Yes. Okay, what are the topic you have covered? Sir, only costings, marginal costing, and Marginal costing. Have you go through that other videos? Cost, material costing, and two video I have uploaded. Have you go through that videos? No, no, sir. No, sir. no. Devasmita, have you go through that videos? No, sir. No, why? You are celebrating Holi only, no? Not studying. I know. This videos is very helpful for your exam, okay? All the crux of the, all the crux, whatever asked in the previous exam, no, I have made the videos on costing, marginal costing, budgetary control, all the topics, basics to advanced. Please go through the video and make a note of it. They will ask directly question from that videos. Means what are the zero based budgeting? What is the difference between the budgeting and standard costing? They might be asking for the 5-mark question. See what happened in the exam. Total it will be 16 mark. No, 10 mark they will ask the problem, and 6 mark they will ask the theory. For that you need to prepare this. Am I right? Okay. Lippy, have you go through that videos? No. Yes or no? So today topic is very important, as I told again and again, supply under GST. Already I have taken the definition of GST, what is GST and what is the GST, and what is the difference between direct tax and indirect tax, and what is the feature of GST. I have already covered. Canon of taxation I have covered, and what is the benefit of GST, I have already covered. Am I right? And today topic is supply under GST. GST किस में लगता है? ऑन सप्लाई. तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे. एग्जाम में इसका डेफिनेशन बहुत सारे 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन में वो आता है. ठीक है, 2 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन है जीएसटी रे आसे. एटा बहुत ही इंपोर्टेंट डेफिनेशन गुड़ाक आम पढ़ा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जिंग सेक्शन. जमती कौन हुए इनकम टैक्स रे भी चार्जिंग सेक्शन अच्छी ना. चार्जिंग सेक्शन मीन्स व्हाट? दिस सेक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट. जदि सप्लाई हेले जीएसटी लागिवो लाइक दैट. इफ देयर इज ए इनकम फ्रॉम सैलरी देन इनकम टैक्स विल लेवी ऑन द सैलरी. सेमिति एग्जैक्टली सेम वे इफ देयर इज ए सप्लाई देन ओनली जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा उसमें. तो सप्लाई का डेफिनेशन बहुत छोटा सा नहीं है. इट इज वेरी बिग डेफिनेशन, very big definition, meaning of supply, and the term is much more important. So what is taxable event? Taxable event or any transaction occurred that result in the tax consequence. If there is a taxable event, जदि taxable event हैला then tax लागिवा. taxable event अगर होता है तो tax लगेगा. Before levy or any tax or taxable event need to be ascertained. मतलब इसका क्या मतलब? अगर कहीं पर भी टैक्स लगाना है, लेवी करना है टैक्स, then taxable event is required. कहाँ पर भी अगर टैक्स लगाना है, जदि कोथरे टैक्स लागिव लेवी हेब हेले टैक्सेबल इवेंट रहिबा दरकार. There should be it is required that there should be taxable event, then only tax will be levy. बुझी पारला? Got my point what I am saying? Yes. Yes. And then important definition of the supply. Supply is very much essential for this. So relevant definition. Before we are going to the definition of supply, we should know some of the relevant definitions. So first one is goods. What is goods? Goods is defined under Sales of Goods Act. सब तुम पढ़ी ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. गुड्स रो डेफिनेशन पढ़ी. व्हाट इज दैट? एनीवन से? So, any movable property.
Any movable property. Very good. What else? Other than money Other than money and and security. Other than money and security. Very nice. What else? आओ किए. Okay. So here goods definition is quite different. First is goods means any kind of movable property other than money and security. इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शनेबल क्लेम. जीएसटी का दायरे में आने के लिए एक्शनेबल क्लेम होना चाहिए. गुड्स का डेफिनेशन में आना चाहिए. बट जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी नहीं लगता है. बट देयर आर सम एक्सेप्शन. विल गो थ्रू दैट डेफिनेशन. सो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. भाई एक जगह से दूसरा जगह ले सकते हो. जस्ट लाइक यू कैन सी दिस फोन is can be movable from one person to the another person, one place to the another place. So it should be movable. Other than means it should be excluded money and security. What is money? Money, paisa, and securities. Security means shares, securities, all these things are excluded. But it should be included what? Growing crops, grass, anything which is attached forming part of land which is agreed to be served before supply under the contract of supply. Section 2 and subsection 52. So definition you should read and you should write the section if it is possible. Jodi it is possible, if it is possible you can write the definition. तमें definition लिखी पारी हो. आपको definition अगर 2 मार्क में पूछता है what is goods, you need to write the exact definition. अगर याद है, otherwise you can write your own language. So we can explain goods author बुझे भी. I will go through the definition of the goods in the pictorial form. Okay, first এটা देखी दिया, then we will go to the explain of the goods. Then competent authority means any authority may be notified by the government. Any authority which is notified by the government, not at all relevant. Okay. Then family means spouse, children or person. This definition is not at all important. Exam में आया नहीं है. There may be no chances, but for knowledge purpose you should go through this. Family means spouse, husband and wife, children or any other person. And the parents, papa, mummy, grandfather, dada, dadi, uncle, auntie. Am I right? Sisters, brothers. Okay, wholly or mainly depend on the said person. ठीक है. Suppose मैं हूँ, मेरा मिसेस होगी, मेरा बच्चा होगे, या मेरे पापा मम्मी होंगे, मेरे दादा दादी होंगे, या मेरा सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे. सब क्या आएगा? फैमिली का डेफिनेशन में आएगा. Is it clear to all of you? Deepak ji, very good. Then government, definition of government, very important. Government means here only central government. Section 2 subsection 53, very important. Government में only here mean central government को बोला जाता है. हम लोग GST लगाते हैं ना, CGST. Here government means only central government को ही indicate किया जाता है. Government means only the central government. Here, okay. Next definition is local authority. I am not going into the detail. बहुत simple है, so it can be easily understandable. Okay. जब जरूरत होगा मैं उसको explain करूंगा जो एग्जाम में जरूरी है. Then local authority क्या होता है? ये पंचायत होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, म्युनिसिपल कमिटी होता है. इस सब को लोकल अथॉरिटी बोला जाता है. Okay. This is not at all relevant. Development board and all. Next, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिजनेस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आता है व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज नॉट बिजनेस.
भाई सिंपल टर्म में बिजनेस क्या है, एनीबडी कैन एक्सप्लेन, बताइए व्हाट इज बिजनेस? लिप्सा, व्हाट इज बिजनेस? सॉरी, हेलो दीपक जी, बिजनेस क्या है? बिजनेस सर, बिजनेस जो सर हम कोई भी प्रोडक्ट को लेकर हम सेलिंग करते हैं, फिर उससे जो प्रॉफिट होता है यस, कोई बिजनेस करते हैं। वेरी गुड। एनीवन एल्स? चिन्मय, व्हाट इज बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस? Sir, buying and selling as a way of earning money. Buying and selling with earning money, very good definition, good. Only buying selling, manufacturing business नहीं है क्या? सर्विस रेंडरिंग इज नॉट बिजनेस। आई एम टीचिंग यू, आई एम चार्जिंग यू मनी, फ्री में दे रहा हूँ क्या सर्विस? पैसा लूंगा भाई सबसे, ट्यूशन फी, एम आई राइट? सो क्या बिजनेस खाली गुड्स होगा, सर्विस होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। सो विल गो द डेफिनेशन। बिजनेस का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, फॉर द जीएसटी पर्पज इट इज वेरी बिग डेफिनेशन। सो हियर बिजनेस इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। देखो जो इंक्लूसिव होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव का डेफिनेशन मतलब अभी के लिए ये है, इसका लिस्ट बहुत लंबा है, इज वेरी बिग लिस्ट, द लिस्ट इज वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। तो इसमें जितना डेफिनेशन है और भी डेफिनेशन ऐड हो सकता है। देयर माइट बी चांसेस सो मेनी अदर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। इसीलिए हम जब सप्लाई का भी डेफिनेशन देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव मतलब ये है और भी हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस इंक्लूड व्हाट? ट्रेड, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, whether any other similar activities, whether not any other pensory benefit। मतलब क्या होता है, हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम कोई चीज बना रहे हैं, बेच रहे हैं, हम सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैं एडवोकेट हूं, मैं आप सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। और कोई भी चीज हो सकता है, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस, उसका अगर संबंध में, मैं सपोज मेरा जो है टीचिंग का बिजनेस है, बट मैं कंसल्टेंसी भी देता हूं, सो इट इज सिमिलर नेचर। या टीचिंग के साथ मैं ड्राइंग पेंटिंग भी सिखाता हूं, ठीक है। सो दिस आर क्वाइट सिमिलर एक्टिविटीज होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस बोलेंगे, फर्स्ट वन। देन बी, एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद एसेंडिटल और एंसेलरी टू द अबव। भाई जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ अगर जैसे मैं गन्ना का जूस, गन्ना बनाता हूं, ठीक है, मैं चीनी बनाता हूं गन्ना का जूस से, सो फ्रॉम द शुगर कैन आई एम प्रोड्यूसिंग शुगर, सो बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर, व्हाइल प्रोड्यूसिंग द शुगर, क्या होता है मैं कि पहले मैं गन्ना को लाके जूस निकालता हूं, तो उससे मोलासेस निकलता है, वो फाइबर जो निकलता है उसको मैं बेचता हूं, ठीक है, वो मेरा बाय प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा मेन काम है क्या? शुगर बनाना, और मैं गुड़ भी बनाता हूं। तो जो एक्टिविटी है ये पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए तो हो रहा है, उसके साथ साथ जो भी एक्टिविटी है वो सब को बिजनेस बोलेंगे। और अगर मैं बेचता भी हूं अगर वो फाइबर को, वो पेपर बनाने में काम आता है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। देन एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इन नेचर अबव ए, whether or not वॉल्यूम ऑफ फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूस रेगुलर इन ट्रांजेक्शन। बिजनेस हम लोग रेगुलर कर सकते हैं या ओकेजनल भी कर सकते हैं, ठीक है। द बिजनेस होता है रेगुलर के लिए, बट एनी एसिड मैंने वन टाइम के लिए भी अगर करूंगा, तब भी अगर कोई एक्टिविटी करता हूं बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, तब भी उसको बिजनेस कहलाया जाएगा। देन सप्लाई ऑफ एक्विजिशन, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ द गुड्स, जैसे मैंने कोई एसेट खरीदा, मैं लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, है ना, कैपिटल एसेट खरीदा, ट्रक खरीदा, बस खरीदा, दैट इज ऑल्सो। एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस शुरू करने के टाइम में मैंने कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया, उसको पेमेंट दिया, या लॉयर को हायर किया, या बिजनेस बंद हो जा रहा है तो भाई उसको प्रोसेस के लिए हमको लीगल फी देना पड़ रहा है। सो ऑल दिस थिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिजनेस। देन प्रोविजन फॉर क्लब, एसोसिएशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना,
और सब्सक्रिप्शन रिसीव कंसिडरेशन बेनिफिट, जैसे मंदिर वगैरह में है ना ट्रस्ट वगैरह होता है, वहाँ पर मेंबरशिप दिया जाता है, लिया जाता है ना। जैसे आपका क्या है, बहुत सारे ट्रस्ट का नाम है, जैसे तिरुपति ट्रस्ट हो गया, है ना, आपका बहुत सारे क्लब वगैरह देखे होंगे, है ना, रांची क्लब है और भुवनेश्वर क्लब है। उस सब में जो भी मेंबरशिप एसोसिएशन होते हैं, उसमें जो भी पैसा आता है, जो एक्टिविटी उन लोग करते हैं, उसको भी बिजनेस बोला जाता है। देन एडमिशन फॉर कंसिडरेशन फॉर द पर्सन एनी प्रोविजंस, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो होता है प्रीमिसेस के अंदर भी जो भी होता है वो भी कंसिडर किया जाएगा। बिजनेस सप्लाई बाय ए पर्सन एज ए होल्डर ऑफिस हैज एक्सेप्टेड ऑफ द इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन। भाई फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इसका डेफिनेशन भी पूरा डिटेल है, पूरा हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। व्हाट इज फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस? रेगुलर एक्टिविटी हो रहा है लेकिन हम एक्सपेंशन उसको करने जा रहे हैं यार, इज रिलेटेड टू द बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, उसको पूरा डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। देन एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेस, जो भी है रेसिंग क्लब, जो हॉर्स रेस वगैरह होता है ना, वो सब लाइसेंस हो गया, बुक्स हो गया, ये सब इसमें बिजनेस में कवर होता है। देन एक्टिविटी इन ट्रांजेक्शन टेकिंग द ट्रांजेक्शन अंडरटेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एंगेजमेंट इन पब्लिक अथॉरिटी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करे या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करे पब्लिक अथॉरिटी के लिए, मैंने पब्लिक के लिए जो भी होगा एक्टिविटी, उसको भी बिजनेस कहा जाता है। सो बहुत लंबा डेफिनेशन है, तो इसको समझ में किसी को डाउट है क्या? तो बिजनेस क्या क्या है, कोई बोलेगा हमको? पहले क्या बोले हम लोग? पहले हो गया आपका एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और वेकेशन एडवेंचर हो गया। एंड पहले हो गया यही चीज आप याद रखिएगा, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। और में भी एनी एक्शन डिटेल और एंसिलरी। देन एक्टिविटी कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली भी होना चाहिए, जो भी है एक्टिविटी रिलेटिंग टू द अबव नेचर। सप्लाई एक्विजिशन होना चाहिए, है ना, एसेट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो भी होना चाहिए। प्रोफेशन क्लब से जो पैसा मिल रहा है वो भी हो सकता है, एसोसिएशन सोसाइटी का भी। एडमिशन कंसिडरेशन हो रहा है ना, ये सब चीज होता है, सब चीज क्या है, बिजनेस है। सो इज इट क्लियर टू एनीवन? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीवन हैविंग द डाउट? देखिए गुड्स का डेफिनेशन में क्या आता है, देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता, देखिए गुड्स, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी, एंड इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूडिंग है भाई? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आपका एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम इज कवर अंडर गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड ऑल। समझ में आया? ये हो गया गुड्स का डेफिनेशन। और नेक्स्ट यहां देखिए आप सर्विस का डेफिनेशन। सर्विस मींस, सर्विस मींस, सर्विस मींस क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो क्या है? दोज हु आर नॉट गुड्स आर कॉल्ड सर्विस। अदर देन गुड्स बोला गया है, जो गुड्स नहीं वो क्या है? सर्विस है। तो गुड्स में लगेगा जीएसटी या सर्विस में लगेगा जीएसटी। समझ में आया? इज इट क्लियर? बट इट इंक्लूड, सर्विस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी और कन्वर्सन ऑफ मनी। जैसे मैं सपोज गया हूं यूएस में, यूएस में तो इंडियन करेंसी नहीं चलेगा, है ना, तो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब मैं जब कन्वर्ट करता हूं, दैट टाइम सम मनी दे आर चार्जिंग, कुछ पैसा वो लोग लेते हैं कन्वर्सन में, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो सर्विस। मतलब जो एक्सचेंज मनी लेते हैं उसको भी बोला जाता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? बुझी पाला? अरे कहू ना दीपक जी, समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ। सो एक गुड्स का डेफिनेशन है, ठीक है। यूज ऑफ मनी मतलब?
use of money means purchasing of the money for the any articles or something or rendering service. हो गया? Then we will go to the definition where you are. बिजनेस हो गया. देन कंसिडरेशन. अरे कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स, अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़े होंगे, एम राइट? व्हाट इज दैट कंसिडरेशन? समथिंग इज रिटर्न. समथिंग इज रिटर्न. समथिंग जो है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे पैसा ले रहा हूं, वो क्या है? कंसिडरेशन है. लेकिन क्या होता था पहले, मैं बहुत जगह में होता था, आप हमको गेहूं दे दो, मैं आपको चावल दे दूंगा, बटर सिस्टम है, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा. मीन्स समथिंग इज रिटर्न. और को वो आप दे, जो सर्विस यूज किया वो दे, या कोई और उसके बिहाफ पे भी दे, दैट इज कंसिडरेशन. ठीक है? तो डेफिनेशन में अगर जाएंगे तो इन डेफिनेशन व्हाट इज मीन्स कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. भाई सप्लाई कंसिडरेशन इधर गुड्स के लिए भी हो सकता है और सर्विस के लिए हो सकता है, या दोनों के लिए भी हो सकता है. इंक्लूड एनी पेमेंट मेड, कोई भी पैसा देते हैं, एनी पेमेंट मेड विथ वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स टू द इंसिडेंट्स एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ. द रिसिपिएंट, जो सर्विस लेता है उसको रिसिपिएंट का भी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन shall not include the subsidy given by the government. जैसे सब्सिडी मतलब क्या होता है, सपोज मैं गैस सिलेंडर खरीद रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि आपको जो है यू नीड टू पे ओनली 700 रुपीज and 200 rupees subsidy given by the government. Total price is 900. Okay, but how much you have paid? Only 700. So consideration is here only 700. कितना है? How much consideration? कितने consideration code है? 700 ना 900? 700. Yes. Subsidy is given by the central government or state government, that should be excluded in the consideration. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. समझ में आया? दे विल गिव द वन एग्जांपल एंड दे विल से व्हेदर दिस अमाउंट इज. सो कंसिडरेशन मतलब समझ में आया? ठीक है, ठीक है. उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग नीचे देखेंगे, व्हाट इज कंसिडरेशन. देन द मनी वैल्यू एनी एक्ट फॉरबिडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स inducement of the supply of the goods both the whether or any other person. देखिए what does it mean. चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, इसका पूरा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कंसिडरेशन का चार्ट भी है. इट विल मोर क्लियर, इट इज मोर क्लियर हियर. कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. कंसिडरेशन एनी पेमेंट इन मनी अदरवाइज फॉर द सप्लाई. जो हम लोग सर्विस लेते हैं, है ना, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई. सप्लाई के लिए कोई भी पेमेंट हो और उसका अदर मोड भी हो, और डिपॉजिट इन कंसिडरेशन एज ए पेमेंट हो, और बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, अदर वो खुद पैसा दे या उसके बिहाफ पर रिसिपिएंट के लिए कोई दे. रिसिपिएंट कौन होता है हम लोग बताएंगे डेफिनेशन में, पूरा डेफिनेशन रिसिपिएंट का है. बट टाइम बिंग यू शुड अंडरस्टैंड रिसिपिएंट मतलब क्या होता है. रिसिपिएंट माने कौन हला, जे सर्विस निए और हु अवेल द सर्विस कॉल्ड रिसिपिएंट. ओके, एंड मनी वैल्यू और एनी अदर एक्ट फॉरनेस ऑफ सप्लाई और एक्सक्लूडिंग सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली when supply is applied deposit consideration for said supply. ठीक है, am I right? एक क्लियर हुआ कंसिडरेशन का मतलब. कंसिडरेशन मतलब हो गया पेमेंट होना चाहिए, और पेमेंट कोई भी दे और कोई भी मोड हो, आदर खुद करे या दूसरा करे.
somebody has paid for this, recipient or some other person, or deposited in consideration of payment, but excluding subsidy received from the government or central government. Is it clear? Is, is it clear? दीपक जी समझ में आया? ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्शनेबल क्लेम हम लोग पढ़ेंगे. एक्शनेबल क्लेम, इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? लेट्स सी द एग्जांपल. मेरे को किससे पैसा लेना था, वो पैसा दे नहीं रहा है. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यार पैसा 1 लाख रुपया मैं उसको दिया था, दे ही नहीं रहा है वो बंदा. तो मैं क्या करूंगा? मैं केस कर दे, आई हैव सूट ए केस अगेंस्ट हिम, बट वो हमको मिला नहीं अभी तक, केस पेंडिंग है, हियरिंग वगैरह चल रहा है कोर्ट में. दैट टाइम इट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम. को भी डेप्ट रिकवर होना है ना, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम. उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेबल. वी कॉल दिस एक्शनेबल क्लेम. So actionable claim means any debt other than debt secured or movable property, a mortgage or immovable property, or hypothecation or pledge of movable property, beneficial interest of the movable property, or possession either contractual और claimant. ये पूरा लंबा डेफिनेशन है, थोड़ा समझने में डेफिनेशन मुश्किल होगा. क्लेम, ठीक है. एक्शनेबल क्लेम का मतलब वही होता है जैसे मैंने आपको समझाया है. इसका अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. जस्ट ए मिनट. बट एक्शनेबल क्लेम में 3 चीज को एक्सक्लूड किया गया है. क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है एक्शनेबल क्लेम में? Actionable claim. Actionable claim generally means unsecured debt or right to the participant in the draw to be held lottery. मतलब जो एक्शनेबल क्लेम में है इसमें 3 चीज को हटाया गया है. पहले क्या हुआ है? फर्स्ट इज लॉटरी, सेकेंड बैटिंग, और थर्ड चीज हो गया गैमलिंग. ये 3 चीज में जो है एक्शनेबल क्लेम में उसको जो है हटाया था. बट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस 3. इनकम टैक्स भी इसमें लगता है. इनकम टैक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दिस 3 थिंग. लॉटरी समझ में आ रहा है? बैटिंग मतलब समझ में आया था? बैटिंग सट्टाबाजी चलता है ना अभी क्रिकेट में, पता है? गैमलिंग, ये तीनों चीज में जो है कि जीएसटी लगेगा. बट एक्शनेबल क्लेम जो होता है, जो आप केस सूट फाइल पेंडिंग रहता है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा. तो मच मोर इंपोर्टेंट डेफिनेशन हो गया आपका दिस वन. एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन ये 3 चीज में जो आपको बताया, लॉटरी, गैमलिंग और आपका जो है बैटिंग में, इसमें जीएसटी लगेगा. वो डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन वो इसमें जीएसटी लगेगा. और नेक्स्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? ओके. देन मैन्युफैक्चर मतलब क्या? जब हम लोग ना मैं जब पास हुआ था, यार मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, 2008 का केस, उसमें ना जीएसटी में, पहले जीएसटी तो नहीं था, एक्साइज ड्यूटी था. भाई मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन मिनिमम 4 पेज का होता था, 3 से 4 पेज. केस लॉ मतलब 50 से 100. और इसमें इतना प्रॉब्लम था मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन में, भाई बोलो मत, बहुत ही हार्ड डेफिनेशन था. बहुत सिंपल है. अभी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? देखिए, आप लकड़ी से लकड़ी का चेयर बना रहे हो. ओके, यू आर कन्वर्टिंग द वुड इनटू वुडन चेयर, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना. पानी का बोतल, पानी को प्यूरिफाई करके पानी बेच रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं? लेट मी नो. बोले दीपक जी, मैन्युफैक्चरिंग है? सर क्या बोले सर?
पानी बोतल हम लोग बेच रहे हैं ना बना के, वो मैन्युफैक्चरिंग है. हाँ मैन्युफैक्चरिंग तो है सर. वेरी गुड. लिप्सा, हेलो. Yes, sir. તમે કહો, લેટ મી નો कि सपोज पपैया रे आमे जो देखी ना तम पान खाइछ के पान बापा खाइथबे के देखिछ पान रेड कलर रे गुडा আছে पपैया रो बने सेटा चेरी चेरी Yes, sir. कोन सेटा मैन्युफैक्चरर नो Manufacturing तो होଉଛି. हां इज इट मैन्युफैक्चरर नो yes it is manufacture our original identity has been changed okay चिन्मय Yes, sir. अच्छा लेट मी नो मैंगो जूस कटिंग करके हमें खाऊ छे मैंगो आंब हैला Yes, sir. इज इट मैन्युफैक्चरिंग Sir, mango na mango juice. नो आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो स्लाइसेस आंब काटिले खाइले No, sir, that is not manufacturing. नॉट मैन्युफैक्चरिंग अच्छा अच्छा मैंगो जूस बनले Sir, ଯଦି ଘରେ କରିବେ ସେଟା manufacturing ହବନି, ବାକି ଯଦି business ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିଛି sale ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଟା service ହବ, ସେଟା ତ manufacturing ହବ. देखो लेट मी से ओके मैन्युफैक्चरिंग मीन्स processing of raw material into input any manner result in emerging the new product bhai you are converting raw material into finished product so new product has been introduced and the character and the use is changed okay the character and the use is changed suppose you are converting the mango into mango juice the character is changed पहले मैंगो था नाउ इट इज मैंगो जूस द कैरेक्टर इज चेंज सो इट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मैंगो इज कटिंग इनटू particular sizes and it is sold in the packet also that is manufacturing the term manufacturing shall be considered according with the section 275 okay समझ में आया is it clear everyone is it clear to everyone got the point or no Yes, sir. okay so manufacturing means what the conversion of input into output where the new product has been emerged and the character is changed and the use is changed then we call this manufacture under section 272 of the act okay then money what is money very important definition money वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट मनी कुछ होगा क्या हम क्यों कर रहे हैं भैया वाई आई एम टीचिंग यू वाई यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी दैट मनी पैसा पैसा क्यों करते हो पैसे पे क्यों मरते हो है ना सो मनी इज इम्पोर्टेंट और जॉब इज इम्पोर्टेंट देखिए पैसा का जरूरत उतना ही है जितना कार में पेट्रोल का ठीक है ज़्यादा पैसा भी नहीं करना ठीक है यू शुड डू योर जॉब मनी इज द बाय प्रोडक्ट money is the byproduct you should focus on your job what you are interested what you are like to do you do that money is the byproduct money तो आएगा आज नहीं तो कल आएगा it will come okay पर ज्यादा पैसा नहीं करना है ठीक है but let's see what is the definition come to the point money means what money means it is in India legal trading means क्या होता था पहले अर्लियर सिस्टम क्या होता था वी डोंट हैव मनी तो हम लोग क्या करते थे बटर सिस्टम करते थे चावल के बदले गेहूं के बदले चावल उसके बाद राजा महाराजा लोग आए तो वो लोग क्या किया मनी के बदले में अपना लोगों वाला सोना क्या वो कॉइन बनाते थे देन दे इंट्रोड्यूस सम अदर कॉइन फिर सोना के बाद में आया आपका सिल्वर आया और ऐसे एक्सचेंज चेंज हो के लास्ट में मनी का इंट्रोड्यूस हुआ इसे क्यों हुआ वाई देयर मनी इज देयर मनी क्यों हुआ वेरी इजी टू ट्रेड भाई आदमी सोना इतना बड़ा सोना लेके तो नहीं जाएगा ना ढोके लेके अभी देखिए मनी का कंसेप्ट चेंज हो गया अभी क्या है यूपीआई बैंकिंग सिस्टम आया सीधा स्कैन करो पैसा ट्रांसफर द मनी कंसेप्ट हैज बीन चेंज है कि नहीं एम आई राइट सो हियर मनी मीन्स
legal tender of any foreign currency, check, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, travel check, money order, postal, electronic remittance instrument recognized by the RBI. जो आरबीआई अगर रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिथियम जानते हो, लिथियम, हाँ, लिथियम ट्रेडिंग हो रहा है अभी, बिटकॉइन ट्रेडिंग हो रहा है, क्या आरबीआई इसको एक्सेप्ट किया है क्या? डू यू नो, एनी आइडिया? हाँ, बिटकॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन Yes, sir. आरबीआई इसको रिकॉग्नाइज किया, इज आरबीआई रिकॉग्नाइज दिस, पता है? नहीं Yes, sir. कर लिया है भाई, हमको नेक्स्ट क्लास में बताओगे देख के, डोंट डोंट ब्लॉप, ओके? सो सर बिटकॉइन को हाँ, सर रिकॉग्नाइज कर दिया आरबीआई। कर दिया ना, वेरी गुड। उसको ले आया है, लीगल में ले आया, पहले इलीगल था। इलीगल था ना, हाँ पता, ठीक है, पक्का पता है ना? तो क्या बिटकॉइन, बिटकॉइन मनी होगा? हाँ, बिटकॉइन मनी होगा सर। ठीक, लेकिन इस डेफिनेशन में दिया नहीं है, तो हम लोग उसको मनी मानेंगे? नहीं नहीं, जीएसटी पर्पस पे हम लोग मनी नहीं मानेंगे, बिकॉज द डेफिनेशन इज क्लियर हियर। और अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, अगर, लेकिन ये लास्ट में लिखा हुआ है भाई, अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, इसीलिए वो मानेंगे। लेकिन अगर आप पहले इसका पहले यहां से यहां तक डेफिनेशन देखेंगे, इसमें नहीं इंक्लूड है, बट अदर इंस्ट्रूमेंट लिखा जाए मतलब वो भी अगर लेट इंक्लूसिव डेफिनेशन है भाई, इसमें आप भी इसको मान सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट, ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक मोड, है ना, सब कुछ को मनी बोला जाएगा। एंड इट इज मीडियम और एक्सचेंज, है ना, ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेड हो गया, इंक्लूडिंग करेंसी, करेंसी इंक्लूडिंग एनी अदर करेंसी हेल्ड न्यूमेरिकली वैल्यू, ठीक है, जिसका भी वैल्यू होना चाहिए उसको मनी बोला जाएगा। समझ में आया? मनी का डेफिनेशन भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नीचे, बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है, आई होप। मनी मनी मनी, जस्ट ए मिनट, money actually, I think it is not that. हेलो हाँ बोले दीपक जी, सर, एक चीज पूछना चाह रहे थे बोलिए। कि जितना सर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हाँ, तो सर ये न्यू बुक में सर इसका लगता सर नहीं दिया हुआ क्या? दिया गया है, इसमें डेफिनेशन में है, और नहीं भी दिया गया होगा ना तो आपको देखिए सप्लाई का डेफिनेशन में ये सब टर्म आता है, एग्जाम में आएगा। सर ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? जीएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़े, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं सर, मगर इसमें ये चैप्टर नंबर सर क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। हाँ, जीएसटी का सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ना, जीएसटी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सब। तो सर उसमें पहला चैप्टर में था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ, हम्म, और सेकंड में है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द जीएसटी एंड आईजीएसटी, हाँ ठीक है, वो भी पढ़ा दिया, ठीक है। वो पढ़ा दिए। हाँ, हम भेज देंगे वीडियो आपको अलग से, आई विल टेक द क्लासेस। ठीक है। और सर ये तीसरा नंबर देखो है बेसिक कांसेप्ट ऑफ द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ वही तो सप्लाई, वही पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। जी सर, जी सर, चलिए आगे पढ़े। जी सर, जी सर। मनी डेफिनेशन खत्म हो गया, कंसिडरेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है, टैक्सेबल सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है, मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ व्हिच इज लेवी ऑफ टैक्स अंडर द एक्ट सेक्शन, जो है कि टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसको सप्लाई बोला जाता है, गुड्स और सर्विसेज उसको बोले जाता है,
that is called taxable supply. Means supply of goods or service is known as taxable supply. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो एक क्या हुआ, सर्विस सप्लाई किया, सो इट इज टैक्सेबल सप्लाई. लेकिन देखिए बहुत इंपोर्टेंट टर्म है. देखिए सप्लाई मतलब क्या होता है, फॉर व्हीट, व्हीट मैंने आपको दिया, वो जीएसटी का दायरे में नहीं आता है, तो वो सप्लाई हुआ, होगा क्या, नहीं होगा. मैं आपको सब दिया व्हीट, बेचा आपको, क्या वो क्या जीएसटी का अंडर आएगा क्या, वो नहीं आता है, तो ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है. समझ में आया. सप्लाई मीन्स ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच जीएसटी इज लेवी, अंडर व्हिच जीएसटी इज लेवी. जो आइटम में अगर सप्लाई उसी को मानेंगे जो जीएसटी के दायरे में आता है. लिस्ट है पूरा. नेक्स्ट टैक्सेबल टेरिटरी. भाई टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या, इंडिया, पूरा इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर, दैट इज टेरिटोरियल लिमिट. इंडिया का डेफिनेशन में भी इसमें आता है. बहुत एक आदमी पूछ दिया इंडिया मतलब क्या होता है, इंडिया का डेफिनेशन भी दिया है जीएसटी एक्ट में. जो होता है टेरिटोरियल लिमिट मतलब होता है 12. देखिए सपोज ये आपका इंडिया है, अरे कहाँ चला गया, आपको दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है, इज इट विजिबल? नो, इंडिया का मैप नहीं दिख रहा है. ओ अच्छा रुकिए फिर, चलिए यहीं पर बनाते हैं. अभी दिख रहा है ना, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. टैक्सेबल अरे दिस इज विजिबल और नो, मैं टैक्सेबल सब डेफिनेशन सब देखा जाओ जी. मैप नहीं दिखा, हाथ में बनाया अभी नहीं दिखा, अभी दिखा? ओ नहीं दिख रहा है क्या? ओ ये क्यों नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए. जो मैं लिख रहा हूँ अंडरलाइन कर रहा हूँ दिख रहा है? ओ अच्छा, सो देयर माइट बी, इसमें जो है ना शेयरिंग में इशू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. एक मिनट ना, इसको दिखना चाहिए यार. कल तो दिख रहा था, कल मैं अंडरलाइन कर रहा था, दिख रहा था क्या वो प्रीवियस क्लास में? तो आज क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट है, एक मिनट, लेट 1 मिनट है, लेट मी. अरे कटरीना आए नहीं क्या, वो आसिला नहीं की? ओहो, जो भी 12 नॉटिकल माइल है उसको हम लोग को बोलते हैं टेरिटोरियल लिमिट. जैसे सी में भी है, एआर में भी है, ठीक है. तो सी में जैसे अगर 12 नॉटिकल माइल का अंदर अगर कोई सी आता है तब उसमें जीएसटी लगेगा, लेकिन उसका बाद में जीएसटी नहीं लगेगा. सो टेरिटोरियल लिमिट मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस. इंडिया का डेफिनेशन में वो आता है 12 नॉटिकल माइल. उसे एआर में भी है, एआर में भी है. सो जनरली द India means the territory of India referred as the Article 1 of the Constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें आर्टिकल 1 में जो लिखा गया टेरिटोरियल लिमिट उसी को बोला जाता है. इट इज द टेरिटोरियल वाटर, इसका मतलब टेरिटोरियल वाटर को ही बोला जाता है. एंड सी सोर्स और सब सॉयल और सच वाटर. एंड बेसिकली इट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदर जोन उसको भी देखा जाता है. 12 नॉटिकल माइल को बोला जाता है. एंड द एयर स्पेस अबव द टेरिटोरियल और टेरिटोरियल वाटर, सेक्शन 2 सेक्शन 56. मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी है उतना एरिया को जो है कस्टम एक्ट में इसका डेफिनेशन पूरा मैं समझाऊंगा, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर जो है ना, टेरिटोरियल लिमिट जो है इसको जो है बहुत एक्सप्लेन तरह में जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में करना पड़ेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब समझाऊंगा ना तो इसको और क्लियर में समझाऊंगा. अभी के लिए इतना जानो, टेरिटोरियल वाटर मतलब इंडिया का मतलब होता है कि 12 नॉटिकल माइल.
इसका अंदर अगर कोई भी सी आता है तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसका बाद में नहीं देना पड़ेगा। सो समझ में आया। देन डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्विस? सर्विस, एनीवन कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? other than goods. यस, सो सर्विस अभी तो मैं पढ़ाया था, वेरी गुड। अदर देन गुड इज सर्विस। सर व्हाट इज सर्विस? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी और सिक्योरिटी which include activity relating to the use of money, or it is conversion of cash or by other mode or from the currency denomination otherwise। जो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सचेंज कर रहे हो करेंसी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सर्विस। जीएसटी उसमें भी लगता है, दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दैट। देन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है पता है आपको? देखिए पर्सन, पर्सन तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है पर्सन। जो इनकम टैक्स में डेफिनेशन है वही को पर्सन बोला जाता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, आप और हम, यू एंड मी, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, एंड द ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड पर्सन्स। इसको हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आई होप सो, कि बताना पड़ेगा। ये बहुत इजी है डेफिनेशन में सब। इसको आपको थोड़ा सा एक बार रीडिंग करना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये हमको पता है, ठीक है। यू शुड गो टू द रीडिंग ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। सो पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी कॉर्पोरेशन, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सोसाइटी और ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज कॉल्ड एज पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट। एम आई राइट? ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। इंडिविजुअल क्या है इसको क्या एक्सप्लेन करूंगा भाई, आप और हम। HUF मतलब ये आपको आई होप कि आप 11-12 में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ऑल दीज आर कॉल्ड पर्सन। बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है भाई? रिसिपिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रिसिपिएंट, बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है। द रिसिपिएंट का अगर डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता, जीएसटी आप नहीं कर सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसिपिएंट। सो रिसिपिएंट मतलब क्या? सप्लाई, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स where consideration is payable for supply or goods or services, both the person who is liable to pay consideration। मतलब मैं आपको टीचिंग कर दे रहा हूं, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, फी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आप मेरे को सपोज 1000 रुपीज पर मंथ दे रहे हो, तो व्हाट इज दैट? 1000 इज यस फॉर द गुड्स और सर्विसेज। मैं सपोज मैं एक मोबाइल है, मोबाइल मैंने आपको बेचा, आपने इसके लिए 1 लाख रुपया मेरे को दिया, सो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सो एनी गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है, हु इज रिसीविंग द सर्विस कॉल्ड एज रिसिपिएंट। कंसिडरेशन है इसमें, देयर इज ए कंसिडरेशन। बुझी पाला? गॉट द पॉइंट? यस और नो? दीपक जी समझ में आया? कंसिडरेशन मतलब होता है पैसा, जो अमाउंट एक आदमी दूसरे आदमी को देता है। सो सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग द सर्विस एंड द रिसिपिएंट में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रिसिपिएंट नहीं समझ में आएगा ना तो आगे जब मैं फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज बताऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। एंड एग्जाम में ये आता है, एंड इन एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क द क्वेश्चन द रिसिपिएंट। देन हो गया अदर नो कंसिडरेशन। भाई चलो हम समझ गए हैं कि देयर इज ए कंसिडरेशन, पैसा दिए तो हो गया। भाई बिना पैसा का भी कंसिडरेशन हो सकता है रिसिपिएंट। भाई सर्विस मैंने दिया, ठीक है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स, द पर्सन whom goods is recipient or deliver or made deliver, बहुत इंपॉर्टेंट, made available to whom possession of the goods use
इज गिवन मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पैसे कंसिडरेशन नहीं दिया, ठीक है, मेड अवेलेबल हुआ। सो इसमें क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट में मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है भाई, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देना चाह रहा हूं, लेकिन वो तो डायरेक्ट मेरे से तो लेगी नहीं, तो मैं क्या क्या दुकान वाला बगल में था, बोला ए सुनो ना यार, ये देखो 10,000 रुपया रखो, और जो है ना कि जब वैलेंटाइन डे आएगा ना तो उसका घर में जो है ना डिलीवरी कर देना, ठीक है, मेरा गर्लफ्रेंड नाम बता दिया, एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या इसमें पैसा दिया क्या, मैं डायरेक्टली इसको परचेज किया क्या, मैं खरीदा क्या डायरेक्टली, नहीं, मैं इसको अवेलेबल कराया मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, तो इसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस, so GST will be applicable here. So this is made available. Any service, without consideration होगा, but there should be supply should be there. There should be supply where no consideration is payable. There is a supply of person, goods, delivery or made available for use of the goods, है ना। या एक पेरेंट्स जो है अपना बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद के देता है, तो उसमें भी जीएसटी लगेगा। He himself is not consuming but made available. Then last point is no consideration is payable where supply of services of the person to whom service is rendered. भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन इसमें भी नहीं है बट सर्विस दिया जा रहा है। कटरीना आज नहीं है, टुडे सी इज नॉट केम, कौन है? कटरीना इज वेरी नाइस डांसर। तो मैं क्या मेरा एक बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेशन करने वाला था, मैं कटरीना को बोला अरे तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो, मैं तुमको पढ़ा भी रहा हूँ, तुमसे पैसा वैसा लूंगा नहीं, तुम ऐसे करना, मेरा जो पार्टी है ना तुम जाके वहां डांस परफॉर्मेंस कर देना, ठीक है। तो सी हैज परफॉर्म द डांस फॉर मी। या तो ऐसे भी हो सकता है कि महांती कौन ना तारा, हु इज दैट पर्सन? चिन्मय महांती। चिन्मय महांती बहुत ब्यूटी पार्लर बहुत भल तार दुकान अच्छी है, ताको ट्यूशन पढ़ुची मु, से कौन करिवो व्हाट सी विल डू, मो मैरेज आसिला है, से कौन करे ब्यूटी पार्लर तार भल अच्छी, से मो पे ना माने ब्यूटी पार्लर जो मेकअप फेकअप कर देला बाहागर मोर है, से पैसा नेला नहीं, सी हैज नॉट टेकन एनी मनी फ्रॉम मी। सो इन दैट केस where no consideration is payable, it is called rendering of services, then it is also called recipient. So in that case I am the recipient, I am the recipient, I have received the service. समझ में आया? Got this point? समझ में आया? Got this point? all बुझी पालो ना नहीं दीपक जी? It is clear to you? sir. बाकी अदर लिपि बुझी पालू? अरे बुझी पालू ना नहीं? गॉट द पॉइंट? अरे कुह यस और नो? सो आई अगेन एक्सप्लेन यू, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई थिंक नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, ऑल इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बुझी पाल, फिर भी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। रिसिपिएंट मीन्स एनी वेयर देयर इज ए consideration is there, then any where consideration is there, payable or supply of the goods or services, both the person then liable for consideration. When there is a consideration and service is rendered or goods is being sold, that supplied, then that is called recipient. The person who is received the service are called recipient. Where there is no consideration but the goods is made available for them, but there is no consideration but supply of goods or service is there, but no consideration is there. Consideration, there is no consideration. Just I gave the example of this one, girlfriend, okay, made available gift to the girlfriend, okay, that is called the person though who received the girlfriend is receiving the services or goods, then that is called, that person is known as recipient. Then last is when there is a service rendered and no consideration is paid. The last example I have given you for beauty parlor example. In my marriage
I ask my student to make up my face and all, then she has not charged anything for that. So that is also called services, and that is fall under GST, and I am the recipient. I hope this is clear. Yes, sir. Sir, why it is not come under consideration? Sir, in exchange, I will give the um, beauty parlor tip. मतलब सर्विस तो इसमें दे रहे हैं. अरे तुम तो सर्विस दे रही हो ना, बट मैं पैसा दिया क्या तुमको? नहीं सर, it is सर এটা তো money रे तो दिखानी. ना मनी रे जाओ नहीं ना, बट मु रिसिपिएंट नो. हाँ सर कंसिडरेशन बने वही हुआ कि आप सर्विस दे रहे हैं और हम भी उसके बदले सर्विस दे रहे हैं. अरे नहीं बाबा, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या? नहीं, पैसा तो नहीं हो रहा सर. तब फिर भी मैं रिसिपिएंट हूँगा ना भाई. भाई मैं सर्विस ले रहा हूँ, मैं इसमें रिसिपिएंट का बात हो रहा है. इसमें रिसिपिएंट कहला जाएगा या नहीं कहला जाएगा, दैट इज द मेन पॉइंट. रिसिपिएंट कहलाया जाएगा सर. हाँ, दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, एंड GST विल बी एप्लीकेबल. GST will be applicable. I'll come to that. Who has asked this question? Who has asked this question? Girl? Some okay, Chinmay. हाँ हाँ. What your question? Sir, even if I am not give the money, but I will give the service. Yes. Why it is not? Are- Why it is not come under consideration? अरे service consideration means only money or money worth payable. But did I pay something to you? No, sir. Then why there is a question of consideration? पैसा मैंने आपको दिया नहीं ना. आई हैव नॉट पे, मुझे तुमको पैसा दे ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तेरे ना. किंतु मु रिसिपिएंट है भी ना नहीं. क्वेश्चन इज दैट. Yes, sir. Yes. हाँ, that is the question. That is the question. Main point is that whether I am the recipient or no. Without consideration also it is called recipient. Okay. Yes, sir. Okay. Next आगे को बढ़िया. Then concept of supply is come into play. Very important. Concept of supply. All the definition is clear to you. Then section 7 or 8 is defined consideration is known as scope of supply. Supply का definition में cover होता है section 7 or 8. The concept of supply is very important. It is the key. जो चार्जिंग सेक्शन, यू कॉल दिस चार्जिंग सेक्शन. सप्लाई नहीं होगा, इफ देयर इज नो सप्लाई देन नो GST विल बी एप्लीकेबल. तो विल गो टू द डेफिनेशन लेटर ऑन. हम लोग एनालिसिस में देखेंगे, देन सप्लाई हमको बहुत अच्छा से समझ में आएगा. हम लोग जो है ना, विल नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट, विल डायरेक्टली गो टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, देन विल गो टू द डेफिनेशन. हियर सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है. जैसे मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज. गुड्स हो सकता है, सर्विस, बोथ. सेल भी है भाई. सप्लाई जो है छोटा डेफिनेशन नहीं है, इट इज वेरी बिग डेफिनेशन, वेरी वाइड. सेल, ट्रांसफर, बटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल मेड or agreed to dispose made for a consideration by a person in course or furtherance of the business. मैं आपको सब बताया था मीनिंग ऑफ बिजनेस, फर्दर ऑफ द बिजनेस. व्हाई? दिस इज द डेफिनेशन. सो सप्लाई मतलब क्या होता है? सेल मीन्स आई सोल्ड अ मोबाइल टू यू, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. Then I rendered a service to you, or you are receive a telecommunication service from the telecommunications provider. That is sale. Then transfer. Transfer means what? Ownership is being transferred. Means ownership is being transferred. Then butter system, exchange. गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं. That is also supply. GST उसमें भी लगेगा भाई, GST उसमें भी लगेगा. GST will be applicable on butter system also. Exchange, quite similar. License,
रेंट, मैं घर भाड़ा दिया, भाई तो आप बोलोगे सर मेरा एक तो घर भाड़ा है 4,000 रुपये महीना मिल रहा है तो जो जीएसटी लगेगा, भाई लगेगा, लेकिन क्या 20,000 से लिमिट से ज्यादा है आपका इनकम, 20 लाख 20 लाख, इफ 20 लाख और अबव देन इट विल बी एप्लीकेबल। बट छोटा दुकान सप्लाई करता है जैसे राशन सामान वगैरह बेचते हैं, सो जीएसटी विल नॉट एप्लीकेबल। बट बिग बाजार सेल करता है, भाई एक दिन का सेल 20 लाख से ज्यादा होता है, पर 1 घंटा 2 घंटा में हो जाता होगा। Excuse me, sir. यस, Sir, Karina will want to join. Sir, please accept it. ओके वेट, अरे यार just a minute, we are here, supply means here it inclusive definition, now it is explain the inclusive, मतलब ये हो सकता है और इसके साथ और भी लिस्ट आएगा, जैसे जोमेटो और स्विगी दो, जब जीएसटी आया था तब आया था क्या, नहीं आया था, है ना, बिटकॉइन नहीं आया था, लेकिन जब डेफिनेशन होगा इंक्लूसिव मतलब ये है उसके साथ और भी ऐड हो सकता है, that some other item may be included in the future, so it is inclusive definition, and exclusive मतलब होता है इतना ही है, इसका छोड़ के और कुछ नहीं है, that is exclusive definition। समझ में आया, got this point? So supply means section 7 talked about, it is means sell, means ownership has been transferred, means I have sold my services to you, you have paid something to me, then transfer means ownership has been transferred, barter means exchange, है गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, जो भी है पहले होता था, exchange is quite similar, लाइसेंस जैसे आप किसका माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेते हो, बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम होता है, देन रेंट मीन्स रेंट है प्रॉपर्टी, है ना, लीज, लीज मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 50 साल 100 साल के लिए लीज होता है, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल मतलब होता है मीन्स आई सेल्ड माई ओल्ड स्क्रैप बिजनेस, सब है, दैट आल्सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट, मेरा तो बिजनेस भाई मैं करोड़ों का संपत्ति है, सपोज इन कोल इंडिया यू टॉक अबाउट नो, स्क्रैप करोड़ों में होता है, इतना बड़ा बड़ा डंपर डोजर होता है, सो स्क्रैप भाई इफ यू सोल्ड योर प्रोडक्ट आल्सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। Then on consideration by a person, so already I have covered the definition of person, consideration I have already covered, in the course of business already I have covered, so supply includes this thing, and important B here, import of service in for consideration whether or not in course of business or not, means suppose I appoint a consultant from the foreign and I ask you to build my house, मेरा घर के लिए मैं एक कंसल्ट, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द माई बिजनेस, बट आई हैव अपॉइंट ए पर्सन फॉर कंस्ट्रक्ट माई हाउस, मैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए मैंने 50 लाख रुपया उसको दिया हूँ, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बट मैं पैसा दिया हूँ कंसिडरेशन 50 लाख रुपीज, देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो फॉरेन में रहता है, यूएस में रहता है, आई हैव आस्क्ड हिम टू कम एंड गिव द सर्विस, और वहीं से सर्विस दिया, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो, Yes, sir. लगेगा, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। दीपक जी, दीपक जी, I think okay, so GST will be applicable on import of service, इसमें consideration is more important, consideration अगर paid होगा और import होगा सर्विस, ये बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, it is does not matter, there will be GST will be applicable on this। Then last thing, activities specified in schedule 1 made agree made for agree और विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये भी सर्विस है, ये चीज है और इसमें कंसिडरेशन नहीं भी होता है, शेड्यूल 1 में, सॉरी ये नहीं, सॉरी शेड्यूल 1 में जो भी लिस्ट है विल गो टू दैट, तब भी वो जीएसटी लगेगा, शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटी है विल गो इनटू दैट, ठीक है, तो उसमें भी विदाउट कंसिडरेशन होगा तब भी जीएसटी लगेगा, देयर विल बी इंक्लूडेड ऑल द लिस्ट शेड्यूल 1 मेंशन विदाउट कंसिडरेशन में होगा तभी इसमें जीएसटी विल बी एप्लीकेबल।
I hope this definition is clear. Okay, तो then there will be negative list also जिसमें GST applicable नहीं होगा. तो देखिए ये इसमें होगा supply. Supply means what? Whether it is goods or services. Anything which is goods or services. हो गया? But not including money and security. That is supply. समझ में आया? Got this point? और if you want clear, again clear definition, supply मतलब क्या होता है? Here it is. So main concept क्या क्या point है? पहले होना चाहिए supply should be on goods or services, or supply anything other than goods or services like money, security does not include. ठीक है? Then there should be a made consideration. Supply should be made in course of furtherance of the business. So this is called meaning of supply. This is called meaning of supply. Supply here definition. Supply means what? Including and excluding. Including a supply of consideration in the course of furtherance of the business. Section 7 1A. Then import of service consideration whether or not in course of furtherance of the business means import of the service is always supply, and supply without consideration, that is also supply. Section 7 subsection C, schedule 1, and it exclude list. So 7(2) और schedule 2 it included, वो exclude होता है. क्या क्या है, हम will go into that. Then activity that to related to supply of goods or supplies. Okay, schedule 2. So this is called supply. This is the meaning and definition of supply. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So second schedule में क्या आता है? Where certain activity transaction, where that is written in the schedule 2, जैसे activity जैसे supply of the गेहूं means गेहूं पे GST नहीं लगता है. So GST will not apply on the GST. And schedule 3 में भी है activity transaction. चलो ठीक है, supply हो गया. Definition of supply is covered. And here also you can see the definition. Supply include sale, transfer, barter, exchange, and license, rent, lease, disposal for consideration in furtherance of the business, and it should be made for consideration in the furtherance of the business. Already I have covered all these things. So आज के लिए इतना के और पढ़ना है. और नहीं करना है, आप पढ़ियो नहीं. देखिए, हेलो, देखिए, यस, without consideration that is also supply. No, I gave you the example. Then business include, I have taken the definition of business. Business means trade, commerce, any profession, manufacturing activity. Okay, that is business. Or activity incidental or ancillary, or any activity same in nature, that is also business. That is also business. Just a minute. एक गिलास पानी लाओ ना. So business include this. Then same in nature. Then supply of acquisition, already I have explained you. In connection with the commencement of the course of the business. Acquisition, आपने एक बिजनेस को एक्वायर किया है ना, लिया.
या सप्लाई किया, कैपिटल गुड्स आपने एक्वायर किया, जैसे आप खरीदे ट्रक बस वगैरह, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। और देन प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ द क्लब एसोसिएशन, ओके, जैसे आपका है रांची क्लब है, भुवनेश्वर क्लब है, सो मेंबरशिप वगैरह कलेक्ट होता है, कंसिडरेशन इज देयर। देन एडमिशन, here service as a holder of office etc in the course of furtherance of the business profession trade commerce, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या लॉयर कोई भी सर्विस देता है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। एक्टिविटी हॉर्स रेस जैसे हो गया, हॉर्स रेस हो गया, जो भी होगा गैमलिंग वगैरह, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। लाइसेंसिंग है ना, ऑथर वगैरह जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो सब बिजनेस में आता है। और एनी एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस। आई होप बिजनेस डेफिनेशन ए ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हूँ, आई शेयर द वीडियो ऑल्सो। Then tomorrow we'll see the mix supply. Supply हम लोग समझा दिए। Tomorrow I'll take the classes regarding the mix supply. Mix supply. Import of service. Import of service. Import of service is comes under GST without consideration. With consideration. अगर विदाउट कंसिडरेशन होता है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रिलेटेड है और नॉट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बट कंसिडरेशन इसमें है, तब ये सप्लाई माना जाएगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई। अगर इफ देयर इज नो कंसिडरेशन रिलेटेड टू द पर्सन और डिस्टेंस पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अदर क्लासेस नो सप्लाई। अगर मैं अपने लिए जो है फॉरेन से सर्विस मंगा रहा हूं बट पैसा नहीं दे रहा हूं, नो कंसिडरेशन है, इन एंड रिलेटेड टू द पर्सन और डिस्ट्रिक्ट और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, फर्दर बिजनेस है, बिजनेस के लिए है, और अदर केस भी है, और कंसिडरेशन नहीं है, इंपोर्ट किया तो वो सप्लाई नहीं है, दैट इज नॉट सप्लाई। ओके, इज इट क्लियर? Then transfer means title should be transfer. Okay, that title मतलब क्या होता है, मतलब ओनरशिप जब ट्रांसफर होता है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर होता है। टाइटल मतलब हो गया इनवॉइस काट के देता है, दे विल गिव द इनवॉइस, भाई ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। जैसे हम बाद में देखेंगे कैसे कब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेल ऑफ गुड्स में आप पढ़े हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स में पूरा डेफिनेशन है कि ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ठीक है। And title of the goods may be transfer. Right or undivided share of the goods without transfer, title transfer होना चाहिए सर्विस में। Then land or building जैसे लीज ट्रांसफर वगैरह है, वो भी सर्विस है। ट्रीटमेंट पर ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और एसेट, ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नॉन सप्लाई ऑफ जीएसटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 थर्ड शेड्यूल में जो है कल पूरा ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। मिक्स सप्लाई अगर विल कवर ऑन टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द क्लासेस। ओके, हैव ए गुड डे, नो गुड नाइट।